اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ بیان ہے حضرت علی علیہ السلام کا۔ حضرت علی علیہ السلام کی پرورش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ پس حضرت علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم و تربیت حاصل کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اوصاف حمیدہ کو دیکھا سمجھا اور ان پر عمل پیرا ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا اور بچپن سے ہی پختہ ایمان آپ کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے زندگی بھر اپنا چہرہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکایا، اسی لیے ہم آپ کے نام کے ساتھ تعظیماً کرم اللہ وجہ کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیم و تبلیغ کے سلسلے میں مندرجہ ذیل پہلی آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہدایت اور تعلیم و تبلیغ پہنچائیے۔ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے سب قریبی رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کیا اور کھانے کے دوران اسلام سے متعارف کرایا، لیکن حضرت علی علیہ السلام کے سوا کسی نے بھی آپ کی بات کی طرف توجہ تک نہ دی۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نہایت ہی جرأت مندانہ انداز سے کہا کہ گو میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، میری ٹانگیں بھی لاغر ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں، پھر بھی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور معاور رہوں گا۔ قریش کے سرداروں نے حضرت علی علیہ السلام کی یہ بات سن کر بہت زور سے کہکہا لگایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ زہرا علیہ السلام سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 3 بیٹے عطا فرمائے، جن کا نام حسن، حسین اور محسن، جو کہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ زینب اور کلثوم آپ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ گو مکہ کے قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن وہ بخوبی جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قابل اعتماد اور ایماندار شخص ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی اپنی قیمتی اشیاء اور زیورات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور جرأت مند تھے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لیٹنے کو کہا اور ہدایت فرمائی کہ سب مالکوں کی امانتیں ان کو واپس کریں۔ ایسے مشکل وقت میں ایسی ذمہ داری صرف حضرت علی علیہ السلام کو سونپی، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کی اعلیٰ صلاحیتوں پر دلالت رکھتی ہے۔ اللہ کا شعر۔ حضرت علی علیہ السلام نے سب لڑائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بے مثال جوان مردی کا مظاہرہ کیا۔ مثلاً بدر کی جنگ کی ابتدا میں ہی ولید بن عتبہ نے مسلمانوں کو للکارا، حضرت علی علیہ السلام نے اس کا سامنا کیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ اسی طرح احزاب کی لڑائی میں عمرو بن عبدو، جو ایک نہایت تجربہ کار جنگجو مشرک تھا، وہ اور اس کا گھوڑا خندق کو پھاند کر مسلمانوں کے قریب پہنچ کے حضرت علی علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کرنا چاہا تو اس نے آپ علیہ السلام سے لڑنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تو طفل مکتب ہے، میرے پائے کے کسی آدمی کو بھیجو۔ حضرت علی علیہ السلام اس کا مقابلہ کرنے پر مصر ہوئے اور اس مشرک کو بھی آنن فانن قتل کر دیا۔
खैबर की जंग के दौरान मुसलमानों की अनथक कोशिशों के बावजूद जब कमास नामी किला फतह न हो सका तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान की ख्वाहिश थी कि यह इज़्ज़त अफजाई उसे मिले। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अगली सुबह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अनायत फरमाया। उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम कदरे अलील थे और उनकी आंखें बुरी तरह से दुख रही थीं। इसी वजह से लोगों को हैरत हुई, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाभ अपने हाथों पर डाला और उन हाथों से हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आंखों को छुआ। अल्लाह के फजल से हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आंखें सेहत याब हो गई और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस यहूदी किले को फतह कर लिया। इसी वजह से हज़रत अली अलैहिस्सलाम को फातह खैबर के लक़ब से याद किया जाता है। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, बढ़ के खैबर से है ये मारकाए दीन और वतन, इस ज़माने में कोई हैदर करार भी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गैर मामूली जंगी सलाहियतों की वजह से आप अलैहिस्सलाम को असदुल्लाह या अल्लाह के शेर का खिताब मिला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा से हिजरत के वक्त लोगों की अमानतें वापस करने पर मामूर किया, बल्कि वक्तन फ़वक्तन गैर मामूली जिम्मेदारी के काम भी आप अलैहिस्सलाम ही को सौंपते थे। मसलन सन 9 हिजरी में हज़रत अबू बकर अमीर हज थे। हज़रत अबू बकर की मक्का मुकरमा रवानगी के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह बरात नाजिल हुई और उसी वही के अहकाम के ऐलान के लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा भेजा। बस हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हज के मौके पर ऐलान किया कि आइंदा किसी गैर मुस्लिम को और किसी शख्स को नंगे जिस्म से तवाफ करने की इजाज़त न होगी। इस तरह हरम शरीफ को गैर मुसलमानों से पाक कर दिया गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम 21 ज़िलहज सन 35 हिजरी को खलीफा बने। अक्सर मुसलमानों ने आप अलैहिस्सलाम की बैत की, यहाँ तक के मुनाफिक इब्ने सबा ग्रुप ने भी आपकी बैत की। चंद मुमताज़ सहाबा कराम ने सियासी मजबूरियों की वजह से आप अलैहिस्सलाम की बैत न की। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मसलन आप अलैहिस्सलाम ने अपनी खिलाफत के तीसरे दिन इब्ने सबा ग्रुप को मदीना मुनव्वरा छोड़ने का हुक्म दिया। इब्ने सबा ग्रुप ने साफ इनकार कर दिया। उनका मकसद था कि मदीना मुनव्वरा में रहकर हालात के मुताबिक रेशा दुआनियाँ करते रहेंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ख्याल था कि पहले हुकूमत को मुस्तहकम बनाया जाए और फिर हज़रत उस्मान के कातलों का खोज लगा कर उनको सज़ा दी जाए। लेकिन बाज़ मुमताज़ सहाबा इकराम का ख्याल था कि खलीफा वक्त को सबसे पहले हज़रत उस्मान के कातलों का खोज लगाना चाहिए। इन दोनों अंदाज़े फ़िक्र में फ़ासला बढ़ता गया और इख्तलाफात ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इलावा सिंह एक और ख़तरनाक ग्रुप की तश्कील भी हुई, उसका नाम ख्वारिज था। उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला किया और शिकस्त खाई। अब यह ग्रुप खुफिया साजिशों के ज़रिए मुसलमान अकाबरीन को ख़त्म करना चाहता था। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत उमर बिन आस और हज़रत माविया सुबह को नमाज को आए तो तीनों को एक ही दिन कत्ल कर दिया जाए। ख्वारिज ग्रुप ने 3 अफराद को इस काम के लिए नामजद किया। तीनों अपनी अपनी ड्यूटी सरअंजाम देने के लिए मुतल्लिका मकामात पर पहुँच गए ताकि 17 रमज़ान सन 41 हिजरी की सुबह को इसे अमली जामा पहनाए। इत्तेफाकन हज़रत उमर बिन आस उस रोज़ फजर की नमाज में हाजिर हुए। अमीर माविया मामूली ज़ख्मों के बाद दुश्मनों के दरगे से निकल जाने में कामयाब हो गया।
जबकि अब्दुल्ला बिन मलजम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को शदीद ज़ख्मी कर दिया और आप अलैहिस्सलाम ने उन ज़ख्मों की ताब ना लाकर 20 रमज़ान को अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द की। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये एजाज़ है कि आप अलैहिस्सलाम की वलादत खाना काबा में हुई और शहादत का मर्तबा भी एक मस्जिद में ही मिला। किसी फारसी शायर ने खूब कहा है कि किससे राह मयसर नशद ए मकाम, ये काबा वलादत, ये मस्जिद शहादत। इसका तर्जुमा ये है कि किसी को ये मकाम हासिल नहीं हुआ कि काबा तुल्ला में वलादत हो और मस्जिद में शहादत हो सिवाय अली अलैहिस्सलाम के। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 63 बरस की थी और आपका दौर खिलाफत 4 साल और 9 महीने था। मसनद हसन में दर्ज है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तदफीन के बाद दूसरे रोज़ इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में यह खुतबा दिया। कहा कि लोगों, कल तुमसे एक ऐसा शख्स रुखसत हो गया जिससे न अगले इल्म में पेश कदमी कर सके न पिछले इनकी बराबरी कर सकेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे झंडा देते थे और उसके हाथ पर फतह हो जाती थी। उसने चांदी सोना कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ अपने रोजीने योमिया अलाउंस में से काट कर 700 दिरहम घर के लिए जमा किए। एक दिरहम तकरीबन 4 आने का होता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक की जंग के दौरान हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मदीना मुनव्वरा में इंचार्ज बनाया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कदरे नाखुशी का इजहार किया क्योंकि वो चाहते थे कि वो भी अमली तौर पर जंग में हिस्सा लें और ना कि औरतों और बच्चों के साथ मदीना मुनव्वरा में क़याम करें। जैसा कि बुखारी में दर्ज है कि साद बिन अबी वक़ास से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम इस बात से खुश नहीं कि तुम्हारा दर्जा मेरे नज़दीक ऐसा है कि जैसे हारून अलैहिस्सलाम का दर्जा मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक था। इससे वाज़ह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के अलावा उनकी दीगर आला सलाहियतों को कितनी कदर मंज़िलत से देखते थे। बारे इलाहा, मैं तेरी रहमत के साथ तेरे अजाब से और तेरी खुशनुदी के साथ तेरे कहर व गज़ब से और तेरे जरिए तेरी नाराजगी से पनाह मांगती हूँ। तेरी तारीफ बुलंद है, तू वैसा ही है जैसा कि तूने खुद अपनी सना बयान की और बयान करने वालों के बयान से तेरी तारीफ और सना बालातर है। बेशक खुदा जो चाहता है वही करता है, वो रब ताला किसी इंसान का पाबंद नहीं। अगर कोई उससे नाराज है या राजी, अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, वो बेनियाज है। ऐ मेरे रब, बेशक मैं तेरी बारगाह में फकीर हूँ, तेरे अजाब से खाइफ हूँ और तेरी पनाह मांगती हूँ। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक और बरगज़ीदा बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हक और सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। من كنت مولا